So we'll start with our session. Is the screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 3, that is impressive web designing. तो क्या रहेगा इस चैप्टर में? What all things we will be studying here in this chapter? Impressive web designing. What does it deals with? Yes, कोई भी बताओ क्या रह सकता है इसमें? Building and designing a website. Building and designing a website. Okay, very good. कौन सी लैंग्वेज यूज करके? HTML. HTML, correct. HTML. So we have already seen the introductory lecture that we will be designing small website using which language? HTML5 language, right? So let us see what all things we are having in this chapter. So these are the contents which we'll be studying in this chapter. So first we will see how does actually a web works. What is a web? How can you define a web? क्या लगता है आपको वेब मतलब क्या रहेगा? Can I say it as a network? A huge network? हेलो? Yes. है ना, हमने नेटवर्क क्या रहता है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क क्या रहते हैं वो देखा है. तो ये जो इंटरनेट है वो एक जाल है जिसमें क्या है, सारे कंप्यूटर्स या स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. फॉर व्हाट पर्पस? We have already seen why do we require a network? For two things. What are those two things? Why do we require a network? Nobody, at least from B division. For use. For basically it is for information sharing and resource sharing. Information मतलब क्या है, जो भी आपके पास information है in the form of text, audio, video files है ना, वो आपकी information हो सकती है. और resource मतलब some hardware devices, like it could be a printer, it could be antivirus as a software. तो उसके लिए हम network हमको जरूरी है, ठीक है. Then we will see what are the components of a web. मतलब web में क्या क्या components होते हैं. Later we will be looking into the introductory part of HTML5. मतलब HTML5 में क्या क्या होता है वो देखेंगे. Can you tell me what is the full form of HTML? Hypertext markup language. Hypertext markup language. Okay, so what does that Hypertext markup Hypertext mean? markup क्या language. रहता है markup मतलब? Markup मतलब क्या रहता है? हुआ है आपको स्कूल में? मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड. आई थिंक HTML आपका स्कूल में हुआ रहेगा, राइट? सो बेसिकली मार्कअप मतलब क्या रहते हैं? टैग्स रहते हैं. देयर आर सम टैग्स जो कुछ काम के लिए डिफाइन किए गए हैं, राइट? सो इफ यू हैव टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, यू नीड टू use that particular tag in HTML. So there are some basic tags of HTML and further advanced tags also, that also we will be seeing. Then heading levels hai, how we can insert an image in a web page. Next is what? Hyperlink. What is a hyperlink? What can be a hyperlink defined as? Web page. बाकियों ने प्लीज माइक आपका म्यूट करिए. Yes, how can you define a hyperlink? How does it looks, a hyperlink? It's blue in color. Blue When in we color. click, Ma'am, from Yes. one web page to we can by clicking on Go the link to- we can go to other Very web good, page. very good, very good. So can I say, मैंने अगर Google पेज में कुछ टेक्स्ट डाला है कि I want to search for particular information, and when I hit on the search button, I will be getting some links which are in blue color, right?
So which when I click, it will redirect me from the Google page to that particular website, right? So those are the hyperlinks, right? तो हम हमारे वेब पेज में hyperlinks भी डालने को सीखेंगे. Then next we will see forms in HTML. So what exactly a form is? Form मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? किसके लिए रहेगा form? To fill up the information or Yes. like that. Okay. To fill up the information मतलब we can take information from the user in using what? Using the forms. So क्या क्या रह सकता है फॉर्म में? आपने अगर कोई फॉर्म भरा है तो फॉर्म में क्या क्या रहता है? यस, फॉर्म में name, क्या क्या address, रहता है? Name, phone phone number. number, address, etc. हाँ ठीक है, वो तो लेबल हो गए. मतलब आप एंटर किस में करते हो वैल्यूज? एक बॉक्स आता है, ऐसे बॉक्स में आप वैल्यूज डालते हो, राइट? सो व्हाट दैट बॉक्स इज कॉल्ड एज? Yes. इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें आप आपकी वैल्यूज डालोगे. टेल मी, अगर जेंडर वहां पे एक लेबल है तो आपको फिर भी उधर टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा क्या? जेंडर भी अगर आपको देना है तो यूजुअली No, क्या ma'am, there रहता is है? a tick No, like ma'am, एक option. small circle आता है. हाँ, सर्कल आता है, राइट? दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का. तो व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ रेडियो बटन, राइट? आर यू गेटिंग इट? रेडियो बटन उसको बोलते हैं, रेडियो बटन जो सर्कुलर रहता है और उसको सिलेक्ट किया तो बीच में ग्रीन डॉट आएगा, मतलब इट इज सिलेक्टेड, राइट? देन नेक्स्ट, अगर मुझे हॉबीज डालनी है मेरे फॉर्म में तो ऑब्वियसली मेरी हॉबी एक नहीं होगी, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल थिंग्स हॉबीज के लिए. तो ऐसा चेक बॉक्स दिखा है कि आपको एक बॉक्स आता है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट यू विल गेट अ टिक मार्क. Yes, remember Yes. me में आपको दिखेगा. Sir, suppose you have logged into the login page of Gmail and there is an option called as remember me या stay sign in. तो वहाँ पे ना आपने stay sign in को टिक किया, मतलब क्लिक किया तो it will get a tick mark. That is called as a check box. So these are the different controls of a form. ये भी हम देखने वाले हैं. Next we will be seeing scripting in HTML. तो किसी को पता है स्क्रिप्टिंग वगैरह? ये अभी HTML का एडवांस पार्ट आएगा, स्क्रिप्टिंग. देन विल बी स्टडीइंग जावास्क्रिप्ट एंड सिंपल प्रोग्राम्स. सो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स अबाउट द स्क्रिप्ट. फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट एग्जैक्टली एन HTML इज, राइट? सो फर्स्ट हम देखेंगे कि वेब कैसे चलता है. तो हमने लेक्चर में देखा है DNS हमारा हो गया है. आई थिंक सी डिवीजन के लेक्चर हमारे पेंडिंग है फर्स्ट चैप्टर के, तो आई विल कवर इट, डोंट वरी. अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दो, ठीक है? Is it okay, C division students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो, Yes, ma'am. आपके यहाँ पे Yes, आपको ma'am. दो कंप्यूटर्स दिख रहे हैं. यहाँ पे क्या है? क्लाइंट मशीन. क्लाइंट मशीन मतलब हम कुछ यूज करने वाले हैं कोई सर्विस. तो जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है वो कौन रहता है? सर्वर रहता है, वेब सर्वर. और जो सर्विस यूज कर रहा है वो कौन रहता है? क्लाइंट रहता है, ठीक है? तो अभी मुझे सपोज ई बाल भारती की वेबसाइट पे जाना है. क्या करना है? मुझे ई बाल भारती वेबसाइट पे जाना है. तो पहली बात तो मुझे उस बाल भारती जो वेबसाइट है उसका क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड टू व्यू टू दैट वेबसाइट? URL. क्या लगेगा? URL. URL. पहले तो मुझे उसका URL लगेगा, राइट? हेलो, सपोज मला फेसबुकला जायचंय तो मैं क्या टाइप करूंगी? www.facebook.com, है ना, हमारे गूगल या एड्रेस बार में, राइट? बट एक बात बताती हूँ कि हर एक कंप्यूटर को एक अलग अलग IP एड्रेस होता है. IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. एड्रेस म्हणजे ये जो IP एड्रेस है वो हर एक मशीन के लिए अलग अलग होगा. So can I say IP address is like an identifier of each and every machine connected to the internet? Yes. So can it be repeated? ऐसा हो सकता है कि दो कंप्यूटर का सेम IP No. एड्रेस है? No, नहीं. ma'am. क्या हमने अभी देखा कि हर एक कंप्यूटर को एक अलग IP एड्रेस है. जैसे कि आपके क्लास में 120 बच्चे हैं तो आपके क्लास में हर एक बच्चे को एक अलग अलग रोल नंबर असाइन है. इट वोंट हैपन दैट कि कोई भी दो बच्चों का सेम रोल नंबर हो, राइट? सो दैट रोल नंबर विल बी लाइक आइडेंटिफायर फॉर यू, राइट? वैसे ही अगर इंटरनेट हम देख रहे हैं तो हर एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक IP एड्रेस रहता है. तो वो IP एड्रेस यूज करके हम एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? बट अभी मुझे बताओ मैन्युअली अगर हम
फेसबुक सर्वर का भी कोई आईपी एड्रेस होगा, एग्री एवरीवन कि फेसबुक को मुझे यूज करना है तो उसका आईपी एड्रेस मुझे मालूम होना चाहिए, Yes. right? But is it possible for a human to remember all the numbers या IP addresses? It is not possible. तो उसके लिए क्या सिस्टम है, एक डोमेन नेम सिस्टम करके एक एंटिटी है, उसका काम क्या है, इट विल मेंटेन अ टेबल जिसमें आईपी एड्रेस होंगे और आईपी एड्रेस के सामने उसकी करस्पॉन्डिंग वेबसाइट रहेगी। मतलब सपोज अभी यहाँ पे देखो ई बाल भारती का आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.2.3 दिख रहा है आपको नीचे, ई बाल भारती वेब सर्वर, उसका आईपी एड्रेस क्या है 10.0.2.3 दिख रहा है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो मतलब मुझे मेरे कंप्यूटर से अगर ई बाल भारती के सर्वर को कनेक्ट करना है तो इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू नो दैट आईपी एड्रेस, बट अभी हमने देखा कि फॉर ह्यूमंस इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, डीएनएस डीएनएस करेगा। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, टेबल रहेगा, आईपी एड्रेस उस मशीन का और उसके सामने उसका जो यूआरएल है। तो अभी देखो कैसा स्टेप होता है, मैंने स्टेप 1 कैसी दी है कि मैंने मेरे मशीन से क्या किया है, गूगल में एड्रेस बार में डाला है www.ebalbharti.in। तो मेरा जो रिक्वेस्ट पहले कहा जाएगा डीएनएस के पास जाएगा। डीएनएस का काम क्या है, आईपी एड्रेस और यूआरएल का टेबल मेंटेन करना, ठीक है। तो वो अपने टेबल में जाके देखेगा कि www.ebalbharti.in ऐसी कोई वेबसाइट मेरे रिकॉर्ड में है क्या। अगर होगी तो वो क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस हमारे मशीन को ट्रांसफर करेगा। इधर तक समझ में आया, स्टेप 2 तक? Yes, ma'am. Yes. अभी हमको क्या हो गया, उसका आईपी एड्रेस मिल गया। नाउ वी कैन कनेक्ट टू दैट ई बाल भारती सर्वर। तो हमारे मशीन से कहाँ रिक्वेस्ट अभी जाएगी, ई बाल भारती के वेब पेज पे जाएगी। हमारी रिक्वेस्ट जाने के बाद जब भी सर्च बटन हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे कंप्यूटर पे कौन सी स्क्रीन आएगी, द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ दैट ई बाल भारती। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इफ यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन आई विल रिपीट इट। यस प्लीज, ऐसा एक भी कोई बच्चा है कि नहीं समझा है, प्लीज बताइए, आई विल रिपीट इट अगेन। Yes, ma'am. Repeat once. रिपीट, ओके। डीएनएस समझा है आपको, डीएनएस का काम क्या है? Yes, ma'am. डीएनएस का काम क्या Yes. रहेगा कि पहले हमने देखा कि हर एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस रहता है, राइट? तो अगर आप कोई सर्वर भी ले रहे हो, सपोज मुझे जीमेल की सर्विस यूज करनी है तो मैं किसके साथ कनेक्ट होंगी, जीमेल सर्वर के साथ, राइट? तो अगर मुझे जीमेल सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो मुझे उसका आईपी एड्रेस मालूम होना जरूरी है। But we as humans, it is not possible for to remember all the IP address. तो हमारा वो काम आसान कौन करता है, डीएनएस करता है, डोमेन नेम सिस्टम। वो क्या करेगा, एक टेबल मेंटेन करेगा, आईपी एड्रेस और उसके सामने उसका रिलेवेंट यूआरएल। इधर तक क्लियर है? डीएनएस का काम सबको समझा? Yes, ma'am. हाँ, अभी देखो स्टेप 1 क्या है, मैं मेरे मशीन से मुझे ई बाल भारती के सर्वर को कनेक्ट करना है या फिर जीमेल सर्वर को, एनीवन। तो मैं जब भी यूआरएल में www.gmail.com डालूंगी या ebalbharti.com डालूंगी तो मैं जब एंटर हिट करूंगी तो वो पहले किसके पास जाएगा, डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, जिसका काम क्या है, यूआरएल को देख के उसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस मुझे देना, ठीक है? इधर तक क्लियर है? स्टेप 2 तक जिनको नहीं समझा था प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. हाँ, step 2 clear, Yes, ठीक है। Now once I get this IP address, I can definitely get connected to that server, है ना? तो अभी ये जो 10.0.2.3 ये जो मुझे एड्रेस मिला है ई बाल भारती का, वो यूज होके क्या हो जाएगा, मैं मेरे उस ई बाल भारती की वेबसाइट को व्यू कर पाऊंगी। तो उसके बदले मुझे मेरे मशीन पे क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। मतलब मुझे व्यू हो रही है वो वेबसाइट, दैट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट वेबसाइट। समझ में आया? So this is how the Yes. web works. Is it okay? Should we move to the next slide? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो कंपोनेंट्स हमने देखे उनका काम क्या है।
So we will see what are the different components of a web. मतलब एक जो web है उसमें क्या क्या हो सकता है. So how can you define a web page? Web page मतलब क्या आएगा आपके दिमाग में? Can I say a website is a web page? Yes, web page मतलब क्या है? आप जब भी कोई इंटरनेट पे कोई भी पेज व्यू करते हैं, that particular single page is called as a web page. So you can design this particular single web page using HTML language. ठीक है? Clear? Next क्या है website? So what could be a website? Collection of web page. Very good. मैम Collection वेब of पेज website. फिर से रिपीट कीजिए ना. क्या रिपीट करूं? वेब पेज रिपीट करूं या पहला वाला पार्ट? वेब पेज. वेब पेज. ओके, वेट, मैं क्या करती हूँ, मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग एंड आई विल शो यू द एक्चुअल वेबसाइट. आपको दिख रहा है क्या गूगल पेज? Yes. Yes, ma'am. So this is my search engine. Okay, मैंने गूगल डाला है. सपोज आई वांट टू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उसका पूरा यूआरएल मालूम नहीं है, तो मैंने सिर्फ यूनिपुणे डाला है, आई हिट द एंटर बटन. सो यू कैन सी ये सारे जो ब्लू कलर में है, बेटा इट इज रिफ्रेशिंग आई थिंक. आपको लिंक्स दिख रहे हैं क्या? यस मैम. Yes, ma'am. Can you see all the blue color links? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So Yes, this ma'am. first website Yes, ma'am. is my unipune.ac.in. ये मेरी वेबसाइट है. ठीक है, अभी मैंने इसको क्लिक किया तो अभी मुझे ये जो दिख रहा है, कैन आई से इट एज अ वेब पेज? Yes. यस मैम. वैसे Yes. मेरी ये जो वेबसाइट है इसमें अलग अलग वेब पेजेस हो सकते हैं क्या? सपोज यहाँ पे देखो अलग अलग टैब्स है. इधर मैं किसी को भी क्लिक करती हूँ, सपोज आई एम क्लिकिंग एनीवेयर. अभी आपको क्या दिख रहा है? आर यू एबल टू सी द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी? वो इट इज academic पर टेकिंग click टाइम किया टू है. लोड. आई हाँ, आ गया आपको? यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, ma'am. लिंक Yes, कहाँ ma'am. है देखो. See, यहाँ पे ना ऊपर आपको उसकी लिंक दिख रही है क्या? इन द एड्रेस बार हाँ क्या मैम. है? unipune.ac.in डिपार्टमेंट फोल्डर में साइंस फोल्डर, और यू कैन सी पेज का नाम क्या है? default.htm. कैन यू सी? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम. मतलब वेबसाइट क्या हो सकती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, राइट? ठीक है, क्लियर? ओके, विल गो टू आवर स्लाइड. So here you can see the proper definition. पहला वेब पेज मतलब क्या है? एक सिंगल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय HTML. मतलब एक पर्टिकुलर वेब पेज जो आप बनाओगे HTML यूज करके, उसको बोलते हैं हम वेब पेज. Why वेब पेज? क्योंकि वो इंटरनेट पे है. That is why it is called as a web page, right? नेक्स्ट, वेबसाइट मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि ये जो सारे वेब पेजेस है वो कलेक्ट करके एक फोल्डर में डाल के, वो फोल्डर को नाम जो आप दोगे उसको बोलेंगे हम वेबसाइट. Just imagine that all the HTML pages which you have created, you have kept them in a single folder, और वो हमारी वेबसाइट. ऐसे इमेजिन करो. ठीक है, तो you can say a website is a collection of interlinked web pages. Now what is this interlink word? कोई बताएगा interlink क्या है? What could be Means this interlink? they are Sorry? connected to it.
They are connected to each other. Very good. Using what? Hyperlink. Using hyperlink. So अभी हमने देखा, हम पुणे यूनिवर्सिटी पे जाके बहुत सारे लिंक्स वहां पे थे, राइट? तो मैंने एक लिंक को क्लिक किया तो क्या हो गया, एक पेज से दूसरे वेब पेज पे मैं चली गई। अभी जो नए पेज में मैं आई हूँ उसमें भी एक बटन रहेगा बैक करके, जो मुझे क्या करेगा, उस न्यू पेज से पहले वाले पेज पे लेके जाएगा। एग्री? Yes. हाँ, तो मुझे Yes. बताओ, अभी सपोज मेरे वेबसाइट में 5 पेजेस है। कितने पेजेस है? 5 है। तो हर एक वेब पेज पे कितने हाइपरलिंक्स होने चाहिए टू गेट कनेक्टेड to each other? Every page should be connected to all other pages of a website. My question is, if suppose my website has got 5 different web pages, so हर एक पेज पे कितने hyperlinks होने चाहिए to make sure that my each and every page is connected to the remaining other pages? 1. Ma'am, 4. Hmm? 4? 4. 5? 4. 4. Very good. जो मेरा पेज अभी मैं फिलहाल यूज व्यू कर रही हूँ उस पे तो मुझे हाइपरलिंक कौन सी लगेगी? बाकी के जो 4 है, राइट? Similarly, if I am on the second page, I will require the links going to the other remaining 4 pages. So समझ में आया? इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे हम? हाइपरलिंक्स डाल के, राइट? नेक्स्ट, वेब ब्राउजर। क्या है ये वेब ब्राउजर? क्यों लगेगा हमको ब्राउजर? It's a software used to browse or view some websites. राइट। सी, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन है, बट सपोज यू डोंट हैव एनी वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड इन योर मशीन, तो आप इंटरनेट का यूज कर पाओगे? नहीं, है ना? आपको अगर कोई वेबसाइट पे जाना है, वेब पेज पे जाना है, तो you definitely require a web browser. Can you tell me which is the default web browser in Windows? Edge, Windows Edge, अभी Windows Edge. करंटली माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। अभी Microsoft करंटली, Edge. प्रीवियसली क्या रहता था? बिफोर माइक्रोसॉफ्ट एज which was the default browser you would Chrome. get with the Chrome. Chrome? पक्का? Chrome. Internet Explorer. Mozilla इंटरनेट Firefox. Explorer. इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय Explorer. डिफॉल्ट रहता था, और अगर आपको कोई नया ब्राउजर यूज करना है तो यू हैड टू एक्चुअली डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। इधर इट कुड बी अ मोजिला फायरफॉक्स, इट कुड बी गूगल क्रोम। ठीक है? इज इट ओके? ये स्लाइड ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ग्रेट। नेक्स्ट, वेब सर्वर। क्या रहेगा? सर्वर कौन रहता है? सर्विस सर्वर देता है। जो सर्विस देता है, राइट? तो ये जो वेब सर्वर रहेगा वो कौन रहेगा? उसको एक कंप्यूटर ही रहेगा क्या वो वेब सर्वर? सिर्फ हाई एंड कंप्यूटर रहेगा। See here you can see what definition it is given. It is an application or a computer that sends web pages over internet using HTTP. मतलब अभी मैंने सपोज जीमेल सर्वर को कनेक्ट किया है, तो वो एक वेब सर्वर है, जीमेल सर्वर। उसका काम क्या रहेगा? मुझे सर्विस प्रोवाइड करना क्लाइंट को। तो सर्विस प्रोवाइड मतलब एग्जैक्टली वो क्या करता है? हमको उसके वेब पेजेस दिखाता है हमारी स्क्रीन पे, मतलब इट सेंड्स द वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर टू आवर क्लाइंट मशीन, राइट? इसीलिए तो हमको हमारे मशीन पे वो सारे वेब पेजेस दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट अ वेब सर्वर डज। इज इट ओके? नेक्स्ट, यूआरएल क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। So you can say it as the address of a web page on the internet, है ना? तो ये जो URL और IP एड्रेस कौन मेंटेन करता है? URL एंड IP एड्रेस का टेबल कौन मेंटेन करता है? DNS. DNS। वेरी गुड। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, राइट? ओके। नेक्स्ट क्या है? HTTP। HTTP फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। So anybody from C division, can you tell me what is a protocol? B division नहीं है, C division का कोई भी। What could be a protocol defined as? Set of rules. Set of rules. है ना? आपल्या कॉलेजमध्ये तुम्ही येता तर कॉलेजचे काय रूल्स आहेत? There are some protocols. You have to wear the uniform, proper dress code is there. You have to wear your identity card. So these are the protocols. वैसे ही जब हम इंटरनेट पे कोई दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं
तो देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दे हैव टू फॉलो। उसमें से एक प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। ये जो रूल्स है वो कब यूज होते हैं? जब भी आपको HTML पेजेस व्यू करने हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं, दैट टाइम वी यूज दिस HTTP। ये HTTP का और एक वर्जन है क्या? सी इफ यू सी एनी वेबसाइट, उसका स्टार्टिंग कैसे होता है? डज इट स्टार्ट डायरेक्टली बाय www.gmail.com या उसके पहले कुछ रहता है, ऑटोमेटिकली आता है? Yes, ma'am. HTTP आता है. हाँ, आता है ना, http:// and then the URL starts. So what does that indicates? that आप जब भी कोई वेबसाइट या वेब पेज व्यू कर रहे हैं तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, इसके वजह से आपको वो वेब पेजेस दिख रहे हैं। Similarly, have you heard about HTTPS? Yes. HTTPS is HTTP with secure mode. So generally it is used for the banking websites, है ना, बैंकिंग या फिर फेसबुक पे भी है, जहाँ पे भी आपका डेटा है अभी फिलहाल, तो उसको जो सिक्योर करना है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो उसके लिए HTTPS is widely used। ठीक है, Results. Yes. Online results. ऑनलाइन रिजल्ट्स, हाँ, जहाँ पे भी आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए वहां पे प्रोटोकॉल HTTPS ही यूज होगा, राइट? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन टू HTML5। ये 5 क्या रहेगा? HTML5 Version. वर्जन, वेरी गुड। क्या रहते हैं वर्जन? क्यों रहते हैं? कोई सॉफ्टवेयर के आपने आप देखे होंगे, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एनीथिंग, सो व्हाट डज दैट वर्जन इंडिकेट? क्यों रहता रहेगा डिफरेंट वर्जन्स? It Ma'am, updates updated version. time to time. जो हर बार वेरी गुड। मतलब क्या है एक अपडेट? मतलब अपग्रेड्स और क्या करता है? अपग्रेड वेरी करते गुड, अपग्रेड करता है। सी अभी मैंने एक सपोज एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया, उसको कुछ दिन यूज करने के बाद मुझे लगा कि यार इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा ये कर सकती हूँ, इसमें मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है विच आई कैन रेक्टिफाई। सो मैं ऐसा 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स लेके वो जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करती हूँ। देन व्हाट आई डू, आई रिलीज अ न्यू वर्जन ऑफ माय सॉफ्टवेयर, और वो आप इंस्टॉल करके वो जो पहले पुराने सॉफ्टवेयर में जो भी खामियां थी, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स थे, उनको हम रेक्टिफाई करके नया वर्जन बनाते थे, राइट? तो ऐसे ही HTML जो लैंग्वेज है उसका भी लेटेस्ट वर्जन क्या है? 5। तो इसमें भी बहुत सारे चीजें कुछ पहले के HTML में थी वो निकाल दी गई, इसमें कुछ और एडिशन कर दिया गया है। सो दैट इज हाउ वी आर नाउ स्टडिंग HTML5। पिछले साल तक हम HTML स्टडी कर रहे थे for our syllabus, but in from last year they have started using HTML5 version। ठीक है, see you have already seen HTML stand for hypertext markup language। मार्कअप मतलब इसमें क्या रहेंगे? सारे टैग्स रहेंगे। ठीक है, क्या करता है ये HTML? सो इट enables टू राइट द कोड फॉर अ वेब पेज। मतलब हमको अगर कोई वेब पेज बनाना है तो हमको उसके लिए कोडिंग करना है, तो वो कोड हम किस लैंग्वेज यूज करके करेंगे? HTML5। फर्स्ट टेल मी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है? एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू ऑल नो? Yes. Python, C++, Java. जावा। जावा, ओके। सो ये सारे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट द HTML5 इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है और HTML? इट enables टू इंटरलिंक वेब पेजेस टू फॉर्म अ वेबसाइट। ऑब्वियसली हाइपरलिंक्स रहेगी तो ही वो वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क करेगी, राइट? तो हम हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं। नाउ ये जो लैंग्वेज है वो किसने इन्वेंट की थी? टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट की थी। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड टू मेक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। व्हाट कैन बी अ इंटरैक्टिव वेबसाइट कॉल्ड एज? मतलब क्या रहेगा उसमें इंटरैक्टिव? इंटरैक्टिव या फिर Interaction. मैं दो वर्ड्स देती हूँ आपको, स्टैटिक एंड डायनामिक। दीज आर द टू वर्ड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। व्हाट कुड बी अ स्टैटिक वेब पेज बी डूइंग एंड अ Means डायनामिक? it not changes. वेरी गुड। स्टैटिक मतलब अगर आपने एक वेब पेज अभी बनाया है तो आप कितने भी साल बाद देखेंगे तो वो वही आउटपुट देगा। मतलब क्या है, उसमें रियल टाइम डेटा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर मैंने एक स्टैटिक वेब पेज बनाया है, ठीक है,
and I'm trying to display the current time and date. So will it show me the current time and date? Static web page बना रही हूँ, no, है ना? तो अगर आप सिर्फ HTML यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ स्टैटिक वेब पेज ही मिलेगा, क्योंकि उसमें ना कुछ कैलकुलेशन होंगे, ना कुछ रियल टाइम डेटा आपको डिस्प्ले होगा। जो भी आपने कोडिंग किया है वो आज भी वही रहेगा और 10 साल बाद वही रहेगा। डन। अभी अगर आपको आपकी वेबसाइट डायनामिक करनी है, मतलब अभी कुछ एक आउटपुट देगा, कुछ मेरे एक्टिविटी के बाद कुछ अलग आउटपुट देगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरैक्टिव या डायनामिक वेबसाइट। So to make a particular web page interactive or dynamic, we require the use of scripting language with our HTML language. तो जब भी आपको कोई इंटरैक्टिव वेबसाइट बनानी होगी तो we require the combination of both the HTML as well as the scripting language. ठीक है, इधर तक क्लियर है? Yes, ma'am. अभी ये HTML जो कोड हम बनाएंगे वो किस में बनाएंगे? कि अगर आपने सुना होगा किसी के थ्रू कि जावा के लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर लगता है, देयर इन नेटबीन्स, इक्लिप्स, या फिर आपको ASP.NET का कुछ कोडिंग करना है तो यू रिक्वायर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। वैसे अगर हमको HTML कोड लिखना है तो हमको कुछ तो लगेगा टाइप करने के लिए, कहाँ टाइप करेंगे? तो हमको सिंपल टेक्स्ट एडिटर लगता है, दैट इज द नोटपैड। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वी विल बी उबंटू यूज कर रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट एडिटर करके सेम लाइक नोटपैड दैट विल बी यूज्ड। एंड वंस वी हैव डेवलप्ड दैट वेब पेज, हम क्यों कहाँ व्यू भी वेब पेज कहाँ व्यू करते हो? क्रोम में। आप कोई भी वेब पेज कहाँ व्यू करते हो? गूगल क्रोम एनी वेब सर्च। गूगल क्रोम एंड अभी हमने देखा कोई भी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हो, वो वेब पेज व्यू कर रहे हैं। तो उस वेबसाइट के लिए जाने के लिए हम क्या ओपन करते हैं? पहला, विच एप्लीकेशन वी मेक यूज ऑफ? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, वेरी गुड, है ना? अभी हमने देखा अगर ब्राउजर ही नहीं तो हम इंटरनेट पे कुछ व्यू नहीं कर सकते हैं, तो वी रिक्वायर अ वेब ब्राउजर, और उस ब्राउजर में हमको हमारा वेब पेज व्यू करना है। ठीक है, नाउ दिस आर द बेसिक टैग्स ऑफ HTML। बेसिक मतलब क्या है? ये टैग्स होने ही होने हैं। ठीक है, आप कोई भी HTML प्रोग्राम लो या कोई भी कोड लो, उसमें ये टैग्स आपको दिखेंगे। ऑब्वियसली देयर विल बी एडिशनल, बट दीज आर द मैंडेटरी टैग्स। ठीक है, मैं आपको एक बताती हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट का कोड व्यू करना है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। Are you able to see the Savitribai Phule University web page? Yes. Yes. हाँ, अभी ये देखो, ये जो है ना वेब पेज बोल सकते हैं हम इसको। तो इस वेब पेज का हमको अगर कोड देखना है, HTML कोड, तो क्या करना है? राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पेज एंड क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स। क्या किया मैंने? राइट क्लिक किया उस वेबसाइट पे and it shows me different option, back, forward, reload, etc. From that I have to select the web page source. So when I select the web page source, it will show me a particular code for that web page, particular web page। आपको दिख रहा है क्या ये कोड? Can you see tags, different tags? क्या अभी तक वो पेज ही दिख रहा है सावित्रीबाई फुले का? पेज ही दिख रहा है। Yes, ma'am. नहीं दिख रहा है? पेज ही दिख ओके, एक मिनट, वो लोड हो रहा होगा। आया अभी? मैम दिख रहा है अभी। Can you- यस मैम, can you see the अभी दिख code? रहा है। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेब पेज पे मैं गई, राइट क्लिक किया एंड आई सेड व्यू पेज सोर्स। व्हेन आई सेड व्यू पेज सोर्स, न्यू टैब में क्या आ गया? उस पूरे वेबसाइट का कोडिंग आ गया। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे सब ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स में कुछ कुछ टैग्स आपको दिखेंगे।
दिख रहे? तो फर्स्ट टैग आपको दिख रहा है ऑन लाइन नंबर 3, दैट इज द HTML. यस कैन मैम. सी लाइन नंबर 3 पे आपको HTML टैग दिख रहा है? हाँ मैम. फिर नेक्स्ट हमारा Yes. बेसिक टैग क्या था? हेड टैग था. कैन यू लोकेट द हेड टैग? Line 5. लाइन नंबर Yes, ma'am. 5. Then next was title tag, that is on line number 6, है ना? ऐसे Six. ही कोई भी वेब पेज लेंगे तो उसमें हमको वो 4 टैग्स तो दिखने ही वाले हैं, एंड इन एडिशन देयर विल बी डिफरेंट टैग्स, राइट? सो व्हाट आर द बेसिक टैग्स ऑफ एनी HTML program? HTML, head, title and body. Just wait, I am locating body. बॉडी है 146 लाइन पे. आपको दिख रहा है क्या 146 लाइन? I have highlighted it. Yes. दिख रहे हैं? हाँ. Yes. Yes तो ये मैम. सारे जो Yes. टैग्स हमने अभी देखे, 4 टैग्स बेसिकली, दोज आर द बेसिक टैग. बेसिक टैग मतलब आप कोई भी लैंग्वेज, मतलब कोई भी HTML का कोड लो तो उसमें वो होना ही होना है, ठीक है? इन दैट पर्टिकुलर वेब पेज कोडिंग यू विल डेफिनेटली गेट दिस बेसिक टैग्स, ठीक है? अभी आगे का जो भी है हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. फिलहाल इस लेक्चर में कुछ डाउट है आपको? No, ma'am. No मैम. एक्चुअली सी डिवीजन आपका थोड़ा पार्ट रिमेनिंग है, क्योंकि बी डिवीजन के ऑफलाइन लेक्चर्स मुझे मिले बट सी डिवीजन के नहीं मिले. तो इज इट ओके इफ आई टेक एन एक्स्ट्रा लेक्चर टू कंप्लीट एंड हम एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हम एक साथ ही टीम पे लेंगे. तो इज इट ओके इफ आई शेड्यूल एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर ओनली सी डिवीजन? Yes, ma'am. हाँ, आर यू रेडी? Yes मैम. So I'll Yes. tell Yes, you ma'am. on your WhatsApp group. चलेगा. And है ना? ठीक है, मैं आपको ग्रुप पे आपको बता दूंगी, ठीक है? Just hold on, हाँ, let ma'am. me take the attendance. हाँ?